میرا باپ میری ماں سے زبردستی جسم فروشی کا کام کرواتا تھا۔ جس دن ماں انکار کرتی وہ اسے بہت مارتا۔ میں بچپن سے یہی سب دیکھتی آ رہی تھی۔ ایک دن میں نے غصے میں اپنے باپ کو مار دیا۔ سوچا اب میری ماں سکون سے زندگی گزارے گی، لیکن ایک دن ماں پڑوسن کے گھر گئی تو واپس نہ آئی۔ میں اسے بلانے گئی تو میرے جسم سے جان نکل گئی، کیونکہ وہاں میرا باپ، جسے باپ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ جہاں محبت اور حفاظت ہوتی ہے وہاں پر یہ الفاظ جنم لیتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میری ماں اس غلیظ کام کرنے کے لیے انکار کر رہی تھی اور میرا باپ اس پر ڈنڈے برسا رہا تھا۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دے میری ماں کو۔ میں اس کے پیروں میں لپٹ گئی، لیکن میرے باپ کا غصہ ایسے تھا جیسے وہ کسی پہاڑ کو ہلانے میں لگا ہو، جیسے آج وہ میری ماں کو مار کے ہی دم لے گا۔ دیکھیے اماں، یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، آپ ان کے حال پر رحم کریں۔ میری آواز لرز رہی تھی اور میرا دل بے قابو ہو رہا تھا، مگر وہ میرے التجاؤں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ تھپڑ ماں کو لگ رہے تھے اور دل میرا پھٹ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کب تک یہ ظلم چلتا رہے گا، کب تک میری ماں یہ سب برداشت کرے گی۔ اگر ابا ایسے ہی مارتا رہا تو آج یقیناً میری ماں کی جان نکل جائے گی۔ میرا دل بے قابو ہو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابا کو کیسے روکوں۔ میں ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی، پرانی لکڑی کی کرسی اٹھا لائی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے ابا کے سر پر دے ماری۔ ایک دم ابا کا ہاتھ رکا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر ساکت رہ گیا اور پھر وہ دھڑم سے زمین پر گرا تھا۔ اماں تو پہلے ہی زمین پر گری رو رہی تھی، جیسے اس کی ساری طاقت ختم ہو چکی ہو۔ میں چیخ کر ماں کی طرف دوڑی، دل خوف اور پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھانے کی کوشش کی اور چارپائی پر بٹھایا۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے ہونٹوں تک لے کر گئی۔ اماں نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور ایک گھونٹ پیا، لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی بے بسی اور درد کی جھلک تھی۔ اماں آپ ٹھیک ہیں؟ میری آواز کانپ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ اماں نے کچھ لمحے آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی جیسے وہ میری حالت سمجھ رہی ہو۔ میں نے بھی کچھ پل سانسیں بھری اور پھر ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ ابا وہیں زمین پر پڑا تھا، بالکل بے حرکت۔ ابا، میں نے آہستہ سے کہا، دل میں خوفناک احساس جنم لے رہا تھا۔ میں کانپتے قدموں سے اس کی طرف بڑھی اور اسے ہلایا، لیکن اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ابا، میری سانسیں رک گئیں۔ میں اس کے چہرے کی طرف جھکی اور اس کی سانسیں سننے کی کوشش کی، لیکن وہاں خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو کبھی نہ ختم ہونے والی تھی۔ اماں، میری چیخ سے جیسے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ اماں، وہ سانس نہیں لے رہا۔ اماں ایک لمحے کو ساکت رہی، پھر جلدی سے زمین پر گرے قدموں کے ساتھ ابا کی طرف دوڑی۔ اس نے ابا کی نبض دیکھنے کی کوشش کی اور پھر ایک لمحے کو وہ جیسے دنیا سے کٹ گئی۔ یہ تو مر چکا ہے۔ یہ الفاظ سن کر جیسے میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں چیخ اٹھی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابا اٹھو، خدا کے لیے اٹھو۔ میں اس کے سینے پر ہاتھ مارنے لگی، لیکن اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں اور اماں ابا کی بھی جان لاش کے قریب بیٹھے تھے اور آنسوؤں کی بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اماں کے چہرے پر ایک عجیب سا کرب تھا، جیسے اس کی دنیا اجڑ چکی ہو۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ابا کی طرف دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحے جیسے فلم کی طرح چلنے لگے تھے جب میں نے غصے اور بے بسی میں ابا کو مارا تھا۔ جیسا بھی تھا، میرا شوہر تھا، میری سر کی چھاؤں تھا۔ اماں نے نم آنکھوں کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے کہا، اس کی آواز میں درد اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے الفاظ میرے دل پر چھریوں کی طرح لگ رہے تھے، جیسے میں نے اس کی دنیا کا واحد سہارا چھین لیا ہو۔ اماں، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میری آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ وہ آپ کو مار رہا تھا، میں برداشت نہیں کر سکی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا جیسے اس سے معافی مانگ رہی ہوں، لیکن میرے اندر خوف اور پشیمانی کا طوفان برپا تھا۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب یوں ہو جائے گا۔ اماں نے میرے آنسو پونچھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اپنے آنسو بے قابو تھے۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، تم نے جو کیا وہ اپنی ماں کی حفاظت کے لیے کیا، لیکن جو ہو چکا ہے اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اماں کی آنکھوں میں خوف اور فکر کی جھلک تھی۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو، اب تمہیں ایک بات سمجھنی ہوگی۔ یہ جو کچھ ہوا ہے اسے کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، کسی کو نہ بتانا کہ تم نے اپنے باپ کو مارا ہے، ورنہ تمہیں بہت بڑی سزا مل سکتی ہے۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں یہ الزام اپنے سر لے لوں گی۔ میں کہوں گی کہ میں اپنے بچاؤ میں مجھے مجبوراً یہ سب کرنا پڑا۔ میرے دل میں جیسے ایک سوئی سی چبھ گئی۔ اماں، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ میں نے اسے مارا۔ میں نے اس کی طرف بے بسی سے دیکھا، لیکن اماں نے سر ہلایا۔ بیٹی، میں تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ اس وقت ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ وہ میری بے بسی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ہم دونوں ابا کی لاش کے پاس بیٹھے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہے تھے، بے بس، بے یار و مددگار۔ کمرے میں صرف ہماری سسکیاں گونج رہی تھیں، میرے اور اماں کے رونے کی آوازیں جیسے سارا گھر ہلا رہی تھی۔ دلوں میں طوفان اٹھا ہوا تھا اور ہماری چیخیں آسمانوں کو چھو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر لوگوں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی اندر آیا، کوئی باہر بھاگا۔ چند لمحوں میں پورا گھر جیسے لوگوں سے بھر گیا۔ میرے رشتے دار، محلے کی عورتیں سب اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے ابا کی لاش کو اٹھا کر چارپائی پر ڈال دیا اور اس کے جسم پر سفید چادر اوڑھا دی۔ اماں کے پاس بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، وہ زمین پر گری ہوئی تھی، روتی چلاتی جا رہی تھی۔ ہائے میرے رب، کیا یہی انجام ہونا تھا؟ کیا ہم نے یہ دن دیکھنے کے لیے جینا تھا؟ ان کی آواز میں ایسی درد اور گہرائی تھی کہ سننے والوں کے دل کانپ اٹھے۔ میں اماں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، اپنی سسکیاں دبا رہی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو روکے نہیں جا رہے تھے۔ گھر میں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کچھ مرد باہر آخری رسومات کا انتظام سنبھال رہے تھے، جبکہ محلے کی عورتیں اندر اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ کسی نے اماں کو گلے لگایا تو کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگی۔ بیچاری کتنی مظلوم تھی، ساری عمر ظلم سہتی رہی اور آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ اللہ کسی پر ایسا دن نہ دکھائے۔ کسی عورت نے میرے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بیٹی صبر کرو، تمہاری اماں نے ساری زندگی دکھ سہے، اب تمہیں ان کا سہارا بننا ہے۔ لیکن میری آنکھوں میں اس وقت کچھ سننے اور سمجھنے کی طاقت نہیں تھی۔ عورتوں کی باتیں کمرے میں گونج رہی تھیں، ہر کوئی اپنے انداز میں ہمارے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ کیا کرے بیچاری، یہ قسمت کا لکھا تھا۔ محلے کی عورتیں مسلسل اماں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن اماں کی حالت ایسی تھی کہ کوئی تسلی دل میں اتر ہی نہیں رہی تھی۔ میری بیٹی، میری جان، اماں نے مجھے سینے سے لگایا۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب اس طرح ہوگا۔ گھر میں ہر طرف لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی اور میرا دل جیسے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ میرے اور اماں کے دلوں میں ایک ایسا خلا تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ جب ابا کو غسل کرنے کے لیے مردوں کے حصے میں لے جایا گیا تو اس حصے میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ جو بھی غسل میں مدد کر رہا تھا ان میں آہستہ آہستہ باتیں ہونے لگیں۔ شاید وہ سب ابا کے جسم پر اس چوٹ کا نشان دیکھ چکے تھے جو میں نے غصے میں لگائی تھی۔ یہ نشان معمولی نہیں تھا، مگر اب سب کے سامنے تھا۔ چند لمحوں کے بعد مردوں میں سے کسی نے پولیس کو اطلاع دی۔ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ دل میں خوف اور پچھتاوے کی ایک گہری لہر دوڑ گئی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اندر ہی اندر ایک عجیب سا بوجھ تھا کہ شاید اب کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ پولیس کے آنے تک جیسے ہر کوئی کچھ جاننے اور کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابا کی لاش کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا اور ایک مختصر سی جانچ کے بعد انہوں نے کارروائی مکمل کی۔ میرا دل مسلسل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی کوئی بری خبر سامنے آنے والی ہو۔ دل میں ایک شدید پچھتاوا تھا کہ شاید میری اس ایک حرکت نے یہ دن دکھایا ہے۔ جب آخر کار ابا کو مٹی کے حوالے کیا جانے لگا تو میری نظروں کے سامنے وہ آخری منظر گھومنے لگا تھا۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے باپ کو مار دیا۔ دل میں 100 سوالات اور پچھتاوے ابھر رہے تھے اور غم کا یہ بوجھ
नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। पुलिस की मौजूदगी और उनके सवालात ने माहौल को और भी संगीन बना दिया था। मुझे उस वक्त ये अंदाजा बिल्कुल भी ना हुआ था कि मेरी अम्मा को बचाने की कोशिश की वजह से अब्बा की जान ही चली जाएगी। अब्बा तो जिंदगी भर हमारे लिए सुकून का बाइस न बन सके, लेकिन उनकी मौत ने भी हमारी जिंदगी में एक तूफान लाकर खड़ा कर दिया था। पुलिस की पूछगछ के दौरान अम्मा ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया और उनको बताया कि वो मुझ पर जुल्म करता था, मारता पीटता था और अब तो हद ही हो गई थी। अगर मैं उसे न मारती तो आज खुद मर चुकी होती। लेकिन पुलिस के पास अम्मा की हर बात का उलट जवाब मौजूद था। उनका कहना था कि अगर इतना ही जालिम शोहर था तो पहले क्यों नहीं पुलिस में शिकायत की इसकी। मैंने उन्हें बताया कि अम्मा में तो हिम्मत ही ना थी कि अब्बा की शिकायत किसी से करती। अफसर ने कहा, फिर तुम कर देती शिकायत। अगर इतनी ही कम हिम्मत थी तो मार कैसे दिया अपने शोहर को। अगर जालिम था और मारता पीटता था तो इंसाफ के लिए पुलिस मौजूद है। अगर हर औरत ऐसे ही शोहर को कत्ल करना शुरू कर देगी तो पुलिस का काम क्या रह जाएगा। बहरहाल कत्ल किसी सूरत माफ नहीं हो सकता। ये कहकर अफसर ने लेडी कांस्टेबल को अम्मा को गाड़ी में डालने का कहा और मैं वहीं ही रोती बिलखती रह गई। मेरी माँ तो ऐसी मजलूम थी जिसने अब्बा का भी जुल्म बर्दाश्त किया और अब मेरे गुनाह की सजा भी अपने सर ले ली। मैं चाहते हुए भी अपने लब पुलिस के सामने न खोल सकी और अपनी माँ को जेल भेज दिया। दूसरी तरफ अब्बा की मैयत को भी दफनाने की बजाय पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। ये देखकर मैंने बहुत वावैला मचाया और उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो लोग मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। मैं उन्हें कायल नहीं कर सकती थी। वो मुझे कम उम्र बच्ची समझ रहे थे और मेरी बातों को खातिर में नहीं ले रहे थे। मोहल्ले की चंद औरतों ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे की तरफ हटाया और मुझे काबू करने की कोशिश की। मैं खुद को उनकी गिरफ्त से आजाद करवाने में हलकान हो रही थी, मगर उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अम्मा ने जाते हुए आंखों ही आंखों में मुझे पुरसुकून रहने का इशारा किया था, ये जानते हुए भी कि वो मेरा सुकून अपने साथ ही लेकर चली गई है। मेरी आंखों के सामने अपनी माँ का बूढ़ा चेहरा घूम रहा था। वो उम्र के इस हिस्से में थी कि उन्हें आराम और सुकून की जरूरत थी, मगर मेरे गुनाह की वजह से वो इस सब से महरूम हो गई थी। अक्सर ही अम्मा मेरे पास बैठती थी और मेरे सामने अपने दिल का इजहार करती थी। वो मुझे कहती थी कि बच्चे, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बुढ़ापा बहुत ही सुकून में गुजरे। उसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और वो अब्बा जान की तरफ इशारा करते हुए कहती थी, मगर ये इंसान मुझे सुकून से नहीं जीने देगा। मुझे लगता है कि ये मेरा बुढ़ापा भी खराब कर देगा। मैं उस वक्त अम्मा को सीने से लगा लेती थी और उन्हें तसल्ली देते हुए कहती थी कि मेरे होते हुए आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा मजीद वक्त दे दें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगी। अम्मा ने मुझे वक्त दे दिया था, लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनकी जिंदगी को खुशियों से भरने की बजाय मैंने उन्हें कांटों से भर दिया था। मोहल्ले भर की औरतें मेरी अम्मा के बारे में बातें कर रही थी। पहले वो उनकी साइड लेती थी, अब सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि जालिम औरत ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया। शाम का वक्त था। अब मैं राशिदा खाला की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। वो मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी, जिससे मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा था। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। उन्होंने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और मुझे कहने लगी, अरे तू क्यों रोती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मैंने शिकायती नजरों से उनके चेहरे की तरफ देखा और तेजी से नफी में सर हिलाते हुए कहा कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो मुझे कहने लगी कि तुम्हारी माँ के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे हैं। 5 साल तक मेरी उसके साथ दोस्ती रही और फिर उसके बाद मैं उसके मोहल्ले में भी आ गई। मैं उससे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो इतनी जालिम नहीं हो सकती। उसका दिल एक छोटी सी चिड़िया के जितना है। अगर वो छिपकली को भी मार देगी तो वो कई दिन तक रोती रहेगी। आखिर वो कैसे एक इंसान को मार सकती है। उसके साथ ही उन्होंने तेजी से नफी में सर हिलाया और दोबारा से मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही नेक औरत है। वो अपने रब से बहुत ज्यादा खौफ खाती है। उसने कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। कभी कभार तो मैं हैरान
हो जाती थी और सोचती थी कि कोई इंसान इस कदर नेक कैसे हो सकता है, आखिर कोई इंसान खुद पर इतना ज्यादा कंट्रोल कैसे रख सकता है। और फिर मेरे सामने तुम्हारी माँ की सूरत में एक मिसाल मौजूद होती थी। वो औरत बिलाशुबह ठीक ही कह रही थी। मेरी माँ किसी का कत्ल नहीं कर सकती थी। इस बार भी उन्होंने किसी को नहीं मारा था, बल्कि कातिल तो मैं थी। गुनाह मुझसे हुआ था, मगर उसका कफ्फारा मेरी माँ अदा कर रही थी। मैंने खाला जान से पूछा कि अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए, लेकिन कोई दूसरा उस गुनाह का इल्जाम लेने के लिए तैयार हो जाए। अभी मैंने अपनी बात मुकम्मल ही नहीं की थी कि वो जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगी और कहने लगी कि इंसान को ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि साफ साफ बताया गया है हर इंसान का गुनाह उसके साथ मंसूब होता है और उसे उसकी सजा मिलती है। इस दुनिया में हम चाहे किसी इंसान के साथ ज्यादती कर दें, लेकिन आखिरत में उसके साथ ज्यादती नहीं होगी। उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी इंसान कुछ भी नहीं छुपा पाएगा। इंसान के अमाल खुद ही बोल पड़ेंगे। हालांकि बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके पास बैठूं। मैं उठकर कमरे में भागी और वो मुझे आवाजें ही देती रह गईं। अपने कमरे में जाकर मैं फुट फुट कर रोने लगी। मुझे शदीद पछतावा हो रहा था। मैंने उसी वक्त ही चादर ओढ़ी और अपनी माँ से निकलने के लिए और अपनी माँ से मिलने के लिए जेल में चली गई। काफी देर तक मुझे कांस्टेबल ने वहीं पर बिठाए रखा। वो मुझे अजीबो गरीब नजरों से देखे चला जा रहा था। उसकी नजरों से मुझे बहुत कोफ्त हो रही थी। मैं उसकी नजरों का मफहूम समझ रही थी और जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर उसे जरा सा भी इशारा मिल गया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। उसी वक्त ही दरवाजा खुला और एक ऑफिसर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर चंद लम्हों के लिए मैं हैरान रह गई। उस आदमी को मैं बहुत अच्छे तरीके से पहचानती थी। ये वही इंसान था जिससे चंद साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उस इंसान की मदद की थी और उसे एक मुश्किल से निकाला था। अब वही एक पुलिस ऑफिसर के रूप में मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यही सवाल मैं उससे पूछना चाहती थी, मगर उसका जवाब मुझे उसके वजूद पर पहनी हुई वर्दी से मिल गया था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम इस थाने के सबसे बड़े अफसर हो? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हाँ मैं इंस्पेक्टर वहाब हूँ। नाम तो तुम्हें पता ही होगा। अभी एक केस के सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ। एक औरत ने अपने शोहर को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। अब बस उसको उसके अंजाम तक पहुँचाना है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मैंने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर दी। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। वो मुझे रोता देखकर परेशान हो गया और कहने लगा कि क्या हो गया है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मैंने उससे रोते हुए कहा कि जिस औरत को सजा देने की तुम बातें कर रहे हो, वो औरत मेरी माँ है। अब की बार हैरान होने की बारी उसकी थी। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके कदमों में गिर गई। मैं उसकी मिन्नतें करने लगी कि खुदा के लिए मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को सजा न दो, वो बेकसूर है। मुझे लग रहा था कि वो मेरी मदद करेगा। मैंने जो एहसान उस पर किया था वो उसका बदला चुकाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपनी जगह पर साकित खड़ा था। उसके वजूद में एक जरा सी भी हरकत नहीं हो रही थी। जब मैंने गर्दन उठाकर देखी तो हैरान रह गई। उसके चेहरे के तासुरात स्पष्ट थे और वहाँ पर किसी भी किस्म की रहम की उम्मीद नहीं थी। वो मुझे दो टोक अंदाज में कहने लगा कि इस सारे मामले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैंने हमेशा से ही इंसाफ का साथ दिया है और इस बार भी इंसाफ का साथ दूंगा। तुम जिस मकसद के लिए यहाँ पर आई हो, अपना काम पूरा करो और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि फजूल में किसी को भी थाने में बैठने की इजाजत नहीं है। मेरी बात सुनने के बाद उसका लहजा यकदम ही तल्ख हो गया था। मैं जो समझ रही थी कि वो मेरी मदद करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। कांस्टेबल जो काफी देर से भूखी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था, अब इंस्पेक्टर के आने के बाद वो भी नजरें झुकाकर खड़ा हो गया था। वो उसकी तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाया और बोला, मैंने कहा भी हुआ है कि इस कमरे में एक लेडी कांस्टेबल को भी रखा जाए, क्योंकि औरतें आती हैं, लेकिन लगता है कि तुम लोगों को मेरी एक बार कही हुई बात भी समझ नहीं आती। मेल कांस्टेबल उससे माजरत करने लगा और फिर लेडी कांस्टेबल वहां पर आ गई। वो मुझे मेरी माँ से मिलवाने के लिए लेकर गई। अम्मा ने जब मुझे वहां पर देखा तो बेचैनी से उठी और तेजी से चलती हुई मेरे पास आई। उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि थाने मत आना, ये जगह शरीफ लड़कियों के आने के लिए नहीं है। मेरी माँ
मैंने रोते हुए कहा कि ये जगह तो बेकसूरों के लिए भी नहीं है, आपका इस सब में कोई कसूर नहीं है, इसके बावजूद भी आपने ये गुनाह अपने सर ले लिया है। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और अम्मा को कहा कि यहाँ पर बहुत बोझ है, मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून नसीब नहीं हो रहा, मुझ पर मेहरबानी करें, मुझे सबसे आज़ाद कर दें। आप इस लायक नहीं हैं कि आपके साथ इस तरह का सलूक किया जाए, ये आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। आपने अपनी सारी जिंदगी पाकीज़गी में गुजारी है, अगर आपको सजा हो गई तो ना सिर्फ मैं इस दुनिया में भी जलील रुसवा हो जाऊंगी, बल्कि मुझे लगता है कि आखिरत में भी मेरे लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा ने मेरे हाथ पकड़ लिए और मुझे कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं है, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसे तुम नहीं जानती, और मैं तुम्हें बताते हुए भी बहुत शर्मिंदगी महसूस करूंगी। बेहतर यही है कि राज को राजी रहने दो और जो कुछ हो रहा है वो चलने दो। अम्मा की आंखों में उस वक्त आंसू थे। इससे पहले कि मैं उनसे मजीद कोई बात कहती, वहाँ पर इंस्पेक्टर वहाब आ गया। उसने मुझे कहा कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है, अब तुम उनसे 24 घंटे से पहले नहीं मिल सकती। मैंने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे साथ इस तरह का जुल्म कैसे कर सकते हो। मेरी बजाय वो मेरी माँ की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा उस वक्त गुस्से की वजह से लाल था। वो कहने लगा कि मैं तुम लोगों पर किसी किस्म का जुल्म नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो एहसान कर रहा हूँ, और इस बारे में तुम्हारी माँ बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। फिर उसने कांस्टेबल को आवाज दी। वो मुझे घसीटते हुए वहां से लेकर चली गई। मैं अपने घर वापस आ गई। रात का वक्त था। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने रब के हजूर गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगी, काश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत हो जाए, वो पुलिस वालों को ऐसा कुछ भी ना बताएं कि जिससे मेरी माँ की जिंदगी को खतरा पहुंचे। मैं जानती थी कि ये दुआ बच्चों वाली है, मगर इसके बावजूद भी मैं बस किसी तरह से अपनी माँ को बचाना चाहती थी। अगले दिन सुबह सुबह ही खाला भागती हुई मेरे घर के अंदर दाखिल हुई और मुझे नींद से उठाते हुए कहने लगी, गजब हो गया है, गजब हो गया है। मैंने बामुश्किल अपनी आंखें खोली। पूरी रात रोने की वजह से और अपनी माँ के बारे में सोचने की वजह से मैं काफी देर से सोई थी और अभी मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैंने खाला को कहा कि क्या हो गया है, क्यों सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है। खाला ने गुस्से से मेरे सर पर थप्पड़ मारा और मुझे जगाते हुए कहा, उधर तुम्हारी माँ मुश्किल में है और तुम अपनी नींदें पूरी कर रही हो। आखिर तुम किस तरह की बेटी हो? क्या सिर्फ एक ही दिन तुम्हें अपनी माँ का दुख हुआ था? अब क्या तुम उसकी तकलीफ को भूल चुकी हो? मेरा सोया हुआ दिमाग फौरन से जागा था। मैंने जल्दी से अपनी खाला से पूछा कि अम्मा को क्या हुआ है, सब ठीक तो है? उनकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। वो मुझे कहने लगी कि तुम्हारी माँ को फांसी की सजा सुना दी गई है। तुम्हारे बाप के पोस्टमार्टम करने के बाद यह हकीकत सब लोगों के सामने खुल गई है कि उस पर तशद्दुद किया गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई थी। और उसके अलावा एक और बात के बारे में भी तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले खाला मुझे वो बात बताती, मैंने उन्हें खामोश करवा दिया और रोते हुए कहा कि फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं सुनना, फिलहाल मुझे अपनी माँ के पास जाना है। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर रोका और कहने लगी, पहले मेरी बात तो सुन लो। मगर मैं उस वक्त कुछ भी सुनने समझने की पोजीशन में नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा। मेरा दिमाग उस वक्त बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ था। उस दिन भी मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाई थी। सारा दिन मैंने अपनी माँ के कमरे में ही गुजारा था, उनकी खुशबू महसूस करती रही थी। न जाने मेरे दिल में क्या आया। मैं उठी और अलमारी की तरफ बढ़ी। मैंने देखा कि वहाँ पर अम्मा के कपड़े पड़े हुए थे। सबसे निचला खाना खाली था, उसमें कुछ किताबें पड़ी हुई थी। मैंने हैरानगी से उन किताबों को उठा लिया, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था मेरे माँ बाप पढ़ना लिखना हरगिज भी नहीं जानते थे। किताब के पहले सफ़े पर लिखी हुई तहरीर को देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई। वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये किताब तुम्हें मेरी पूरी जिंदगी के बारे में बता देगी। मुझे पता है कि मेरे बारे में हकीकत जानने के बाद तुम्हें मुझसे नफरत नहीं होगी, बल्कि तुम्हें मुझसे हमदर्दी हो जाएगी। मैंने कभी भी कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा से यही चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं जानती थी कि मेरा तरीका थोड़ा सा गलत था। अगर वो मेरे रास्ते में रुकावट ना बनता तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाती। ये पढ़कर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई।
मैं नहीं जानती थी कि ये किसकी किताब है और किसने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है। वहाँ पर कोई नाम वगैरह भी मौजूद नहीं था। इससे पहले कि मैं सफ़ा पलटती, मुझे खाला राशिदा की आवाज़ दोबारा से सुनाई दी। वो जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हुई और मेरे हाथों से किताबें लेते हुए मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि तुमने किसकी इजाज़त से अपनी माँ की अलमारी खोली है। अब की बार मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उन्हें कहा कि आप ये बात भूल रही हैं कि वो मेरी माँ है और मैं उन पर हक रखती हूँ। उनकी चीज़ों पर भी मेरा उतना ही हक है जितना उनके वजूद पर है। उन्होंने गुस्से से मुझे घूरा और कहा कि उसकी किताबों को उठाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। मैंने खुद आज तक उसकी कोई डायरी नहीं पढ़ी। मैंने उनसे हैरत से पूछा कि अम्मा तो लिखना पढ़ना जानती ही नहीं थी। वो पूरे सरार अंदाज में मुस्कुराने लगी और मुझे कहने लगी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में तुम भी नहीं जानती। वक्त गुजरने के साथ तुम्हें उनके बारे में पता चलेगा। जल्दबाजी दिखाने का कोई भी फायदा नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसे कबूल कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो किताबें लेकर मेरे कमरे से निकल गईं और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें रोक सकूं। न जाने कौन सी कुव्वत थी जो मुझे पीछे हटा रही थी। किताबें लेकर वो वहां से चली गई और फिर अगले ही दिन मुझे अपनी माँ से मिलने की इजाजत भी मिल गई। मुझे कॉल करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर ही था। सबसे पहले उसने मुझसे माजरत की और अपने पुराने रवैये की माफी मांगी। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि अगर उस वक्त मैं तुमसे सख्त लहजे में बातें ही करूंगा तो तुम्हारे दिल में कोई गलत फहमी पैदा हो जाएगी। अगर तुम्हें ये लगेगा कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे दिल से हर तरह की खुशफहमी को दूर करना चाहता था। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। फिर मैंने उससे दोबारा एक उम्मीद से पूछा। मैंने उसे कहा कि माजी में मैंने तुम्हारी जिंदगी को बचाया था और तुम्हें दोबारा से जीने की उम्मीद थमाई थी। वो हंसने लगा और कहने लगा कि अब तुम मुझसे उसका बदला लेना चाहती हो। मैंने भी उसकी बात की तायीद कर दी और कहा, हाँ, मैं तुमसे उस बात का बदला लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से माजी में मैंने तुम्हारी मदद की है, बिल्कुल उसी तरह हाल में तुम मेरी मदद करो और मेरी माँ को इस सजा से बचा लो। चंद लम्हों के लिए वो भी खामोश हो गया और फिर मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि अभी तुम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हो। उससे निकलने के लिए तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि वो मुश्किल इस मुश्किल से कई बड़ी होगी। फिलहाल इस तरह की बातों का कोई भी फायदा नहीं है। तुम अगर अपनी माँ से मिलना चाहती हो तो थाने चली आओ। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों का वक्त है। इस दौरान तुम अपनी माँ से जितनी भी बातें कर सकती हो कर लो, क्योंकि दोबारा तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। ये कहकर उसने कॉल काट दी। मैं भी जल्दी से चादर ओढ़कर दोबारा से जेल पहुंच गई। अम्मा दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर गहरा सुकून था। वो बिल्कुल भी परेशान नजर नहीं आ रही थी। मुझे देखकर उठ गई और तेजी से चलती हुई मेरे पास आई। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। अब उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर पहले जो सुकून था वो गायब हो चुका था। उन्होंने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और मुझे कहने लगे, बेटा, मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त बाकी रह गया है। मैं बहुत जल्दी इस दुनिया से चली जाऊंगी, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम एक काम करो। अम्मा की बात सुनकर मैं बेचैन हो गई और उन्हें कहा कि आप सिर्फ हुक्म करें, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अम्मा मुझे कहने लगी कि मेरी मैयत जेल के अंदर ही दफन करना और 3 दिन के बाद कब्र खोलना। उसकी बात सुनकर मैंने बेयकीनी से उनके चेहरे की तरफ देखा। ये बहुत ही अजीबोगरीब बात थी और ऐसा करना भी मुमकिन नहीं था। तो मैंने उन्हें कहा कि ये जेल मेरी अपनी कस्टडी में नहीं है। मैं आपको कैसे यहाँ पर दफन कर सकती हूँ? मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिलेगी। अब की बार वो जोर जोर से रोने लगी और मुझे कहने लगी कि तुम्हें कुछ भी करके ये सब करना होगा। ये मेरी वसीयत है जो तुम्हें माननी होगी। उसके बाद वो रोने लगी और कहने लगी, जिंदगी में कभी भी मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए तंग नहीं किया। मैं हमेशा से यही कोशिश करती थी कि तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचाऊं, मगर बेटा, बहुत सी चीजें मेरे हाथों से निकल चुकी हैं। अब मुझे तुम्हारी मदद लेनी ही पड़ेगी। अम्मा मुझे कहने लगी कि मेरे जाने के बाद अपनी खाला राशिदा का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। उनका तुम्हारे साथ एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अब की बार मैंने सवालिया नजरों से अपनी अम्मा के चेहरे की तरफ देखा। दिन का वाकया भी दोबारा से मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगा था। खाला बहुत ही अजीब अंदाज में पेश आई थी। न जाने उन्हें दिन के वक्त एकदम से क्या हो गया था।
मैंने उसके बारे में जब अम्मा से पूछना चाहा तो वो कहने लगे कि इस बात को फिलहाल साइड पर रखो, तुम सिर्फ और सिर्फ ये जान लो कि खाला राशिदा तुम्हारी सगी खाला है, वो मेरी सगी बहन है। मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हों। मैंने अम्मा से पूछा कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपा कर रखी हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे कि मुझे सब कुछ छुपाना पड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ, तो ये सारी बातें याद रखना और कोशिश करना कि मेरे जाने के बाद अपनी खाला को कोई भी तकलीफ ना पहुँचाओ। वो तुम्हें जो कुछ भी करने के लिए कहें तुम खामोशी से मान लेना, उनके किसी भी हुक्म के खिलाफ नहीं जाना। बस यूं समझ लेना कि वही तुम्हारे उस्ताद हैं। मैंने तुम्हें हमेशा से ही सिखाया है कि अपने उस्ताद की जितनी भी इज्जत की जाए कम है। वो यकदम ही बहुत जज्बाती हो गई थी। मैंने जब अम्मा से उनके कमरे में मौजूद किताबों के बारे में पूछा तो वो फीके से अंदाज में मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि वो किताबें मेरी ही लिखी हुई हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सहा है, जितनी भी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, वो सब कुछ उन किताबों में दर्ज है। मैं तुम्हें कभी भी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम वो किताबें खोलकर पढ़ो। अम्मा ने साफ अल्फाज में मुझे समझा दिया था कि मैं उनकी किताबों की तरफ देखने की भी कोशिश ना करूं। हम लोग खड़े बातें कर रहे थे कि इंस्पेक्टर दोबारा से वहां पर आ गया और हम दोनों को देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा, माँ बेटी खुश हो जाओ क्योंकि फांसी का दिन बढ़ गया है, अब कल तुम्हारी मौत वाक़या होगी। उसने बहुत ही बदतमीजी से मेरी माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। दिल तो कर रहा था कि उसका मुंह नोच डालूं। आज से तकरीबन 2 साल पहले जब मैं अपने कॉलेज से वापस जा रही थी तो अचानक ही मुझे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी थी। यूं लग रहा था जैसे कोई बहुत ही बड़ी तकलीफ में मुब्तला हो। मैंने हैरानगी से अपने चारों तरफ देखा तो कोई भी नजर नहीं आया। मैं दोबारा से आगे की तरफ बढ़ गई और उसे अपना वहम करार दिया। इससे पहले कि मैं बस स्टॉप से भी आगे जाती, अब की बार मुझे किसी की पुकार की आवाज़ सुनाई दी। मेरी परेशानी में सही मायनों में इजाफा हो गया था। मैंने उसे देखा तो मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पहले तो मैंने दिल ही दिल में यही सोचा कि भाग जाती हूँ। जमाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यह भी तो हो सकता है कि कोई मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो, मगर उस इंसान की जिंदगी लिखी हुई थी, इसी वजह से मैं उस तरफ बढ़ रही थी। वहाँ पर इंस्पेक्टर जख्मी हालत में बैठा हुआ था। वो यकीनन यहाँ पर किसी से छुप कर आया था या फिर उसके पीछे दुश्मन लगे हुए थे। मुझे इस बारे में पता नहीं था। मैंने उसी वक्त ही एम्बुलेंस को कॉल मिलाई और उसे वहां से भेज दिया। जब मैं वापसी पर घर गई तो मैं काफी पुरसुकून थी। मेरे दिल में गहरा इत्मीनान फैला हुआ था। मैंने किसी इंसान की जान बचाई थी और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मगर जब मैंने अम्मा को इस बारे में बताया तो अम्मा बुरे से मुंह बनाने लगी और कहने लगी कि मेरे नजदीक इस चीज की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है। ये कहकर वो दोबारा से अपने कमरे में चली गई थी। उन दिनों वो कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहने लगी थी। हर वक्त ही वो अपने कमरे में बंद रहती थी। उनकी ये आदत देखकर अब्बा बहुत गुस्सा करते थे। जब भी अम्मा से मुखातिब होते थे यही कहते थे कि तू एक नंबर की बदबख्त औरत है जो ना सिर्फ खुद जहन्नुम में जाएगी बल्कि इसके साथ साथ मुझे भी लेकर जाएगी। उस वक्त अब्बा की बातें सुनकर और भी मुझे बहुत अफसोस होता था और मैं सोचती थी ये किस कदर जाहिल इंसान है जो अपनी नेक बीवी को इस तरह की बातें कह रहे हैं। जब मैं अम्मा की साइड लेती थी तो वो गुस्से से मुझे कहते थे बहुत जल्दी तुम पर उसकी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। उस दिन तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। अम्मा मुझे हमेशा ही अब्बा से दूर रहने के मशवरे देती थी और वो कोशिश भी यही करती थी कि मैं अब्बा के पास ज़्यादा देर तक ना बैठूं। मैं अगर थोड़ी देर के लिए भी उनके पास चली जाती थी तो वो मुझे दोबारा से अपने पास बुला लेती थी। एक दिन अब्बा मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरा खून हो और मैं तुम्हारे वजूद से इनकार नहीं कर सकता। मुझे डर लगता है कि ये औरत तुम्हें तबाह बर्बाद ना कर दे। मेरे जहन में तो सिर्फ और सिर्फ अम्मा की कही हुई बातें थी। मैंने उस वक्त भी अब्बा के चेहरे की तरफ नफरत से देखा था और उन्हें कहा था कि अम्मा मुझे बर्बाद नहीं करेंगी बल्कि आप हमें बर्बाद कर देंगे। मैं जब अब्बा को मना करती थी कि वो अम्मा को ना मारें तो वो और ज्यादा गुस्सा करते थे। अक्सर तो वैसा होता था कि वो बिल्कुल ही पागल हो जाते थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं लग रही होती थी कि वो क्या कर रहे हैं और फिर काफी देर के बाद जब वो थोड़े से नॉर्मल होते थे तो हैरानगी से मुझसे पूछते थे कि उन्हें क्या हुआ था। मुझे तो लग रहा था कि वो एक नफसियाती इंसान बन गए हैं। दूसरी तरफ अम्मा बहुत ज्यादा मार खाने के बावजूद भी
पुरसुकून रहती थी, उन पर किसी किस्म का कोई असर नहीं होता था। एक और चीज जो मैंने शिद्दत से नोट की थी वो ये थी कि अब्बा को ज्यादा देर अम्मा का कमरे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर इसके बावजूद भी वो ऐसा ही करती थी। वो मार खा लेती थी लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। मैं चूंकि अम्मा के साथ ही थी, इस वजह से उनकी साइड लेना मुझ पर फर्ज था। मैं जब वहां से बाहर जा रही थी तो अपने पीछे मुझे इंस्पेक्टर की आवाज सुनाई दी, जो मेरी माँ को कह रहा था, आपको क्या लगता है कि किसी की जिंदगी अजाब बना के आपकी जिंदगी सुकून में चली जाएगी? ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलत फहमी थी। आपके साथ भी वही सब कुछ होगा जो आप दूसरे लोगों के साथ करती आ रही हैं। अम्मा ने इंस्पेक्टर को कहा था कि तुम जितनी मर्जी कोशिशें कर लो, लेकिन एक बात तो तय है कि तुम मेरी बेटी को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। ये कहकर वो अजीब अंदाज में हंसी थी, फिर उसके बाद में बाहर निकल गई। मेरे पास इन बातों पर सोचने के लिए वक्त नहीं था। मुझे एक और परेशानी लाहक हो गई थी, वो ये थी कि मैं कैसे अम्मा की मैयत को जेल में दफनाऊं। मुझे पता था कि इस मामले में सिर्फ एक ही शख्स है जो मेरी मदद कर सकता है। अगर वो इस काम की हामी भर ले तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। पहले ही मैं इंस्पेक्टर वहाब के हाथों अपनी अच्छी खासी इज्जत अफजाई करवा चुकी थी और अब तो मुझे आदत भी हो चुकी थी, लिहाजा इससे बात करना मुझे अजीब नहीं लग रहा था। मैंने उसे रात के वक्त कॉल मिलाई और अम्मा का मुद्दा उसके सामने रख दिया। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और फिर मुझे कहने लगा कि उसे कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि जेल के साथ ही कब्रिस्तान भी मौजूद है जो उनकी कस्टडी में ही आता है, लिहाजा वो अम्मा को वहाँ पर दफना देंगे। उस कब्रिस्तान में बहुत से शहरी भी दफन थे। हमें जगह लेने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई थी, मगर जगह मिल गई थी। मुझे अगले दिन से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। पूरी रात में रोती रही थी और तड़पती रही थी। एक और बात जो मैंने शिद्दत से नोट की थी वो ये थी कि सारी रात खाला घर से बाहर रही थी, न जाने वो कहाँ पर चली गई थी। सुबह के वक्त जब मैं आखिरी बार अम्मा से मिलने के लिए गई तो खाला भी वहीं पर ही मौजूद थी। मेरी अम्मा को देखकर वो कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पीछे अब तुम्हारी बेटी की तरबियत मैं करूंगी। मैं उसे बिल्कुल तुम्हारे जैसी औरत बना दूंगी, तुम्हें फख्र होगा। उसके बाद अम्मा को ले जाया गया और फिर थोड़ी ही देर बाद उनकी रूह इस फानी दुनिया से परवाज कर गई थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी कि अचानक ही इंस्पेक्टर मेरे सर पर आकर खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा कि तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि एक शैतान बुढ़िया से तुम्हारी जान छूट गई, वरना अगर ये जिंदा रहती तो ये तुम्हारी जिंदगी भी अजीरन बना देती। मैंने इंतहाई गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका मुंह नोच डालूं। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया हुआ था। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, 3 दिनों के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। मैं हैरान हुई कि उसे 3 दिनों के राज के बारे में कैसे पता। फिर मैंने ये सोचकर अपना जहन झटक दिया कि शायद वो नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा हो। 3 दिन बाद मैं वहाँ पर पहुंची। मैंने थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो वहाँ पर एक खत पड़ा हुआ था जिसमें अम्मा जान मुझसे मुखातिब थी। वो मुझे कह रही थी कि उनकी ख्वाहिश है कि मैं उनके मरने के बाद उनकी पीढ़ी पर बैठूं। वहाँ पर एक पत्ता भी मौजूद था। वो मुझे अपने पत्ते पर जाने का कह रही थी। इससे पहले कि मैं वहाँ से उठकर जाती, इंस्पेक्टर भी वहाँ पर चला आया। उसे देखकर मैं खौफजदा हो गई। उसने मुझे पुरसुकून रहने का इशारा किया और उसके साथ एक वीडियो चला दी। ये वीडियो जेल की थी जहाँ पर अम्मा मेरी खाला से मिल रही थी। वैसे तो वहाँ पर कैमरे लगाने की इजाजत नहीं थी, ये गैर कानूनी काम था, मगर इंस्पेक्टर ये सब करने में कामयाब हो गया था। जैसे जैसे मैं उनकी बातें सुनती गई मुझे लगा कि मेरे जिस्म से जान निकल रही है। मेरी अम्मा कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी जो कि दूसरों के मर्दों पर जादू करती थी। उन्होंने अब्बा पर भी जादू किया हुआ था। मेरा अब्बा कोई जालिम इंसान नहीं था बल्कि वो बेबस था। अम्मा की शादी उनकी पसंद के खिलाफ हुई थी और इस बात की सजा वो अपने शोहर को देती थी। वो उन्हें ज़हनी तौर पर तकलीफ पहुंचाती थी और उनसे वो काम करवाती थी जो वो नहीं करना चाहते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने दूसरी औरतों के मर्दों पर भी जादू कर रखे थे। जो औरत अपने शोर से तंग होती थी वो मेरी माँ के पास चली जाती थी। इंस्पेक्टर भी उन्हीं बच्चों में से एक था जिसके वालिद पर जादू करवाया गया था।
वो उस वक्त 9 साल का था जब अपनी माँ के साथ मेरे घर आया था। उसे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से याद था और फिर उसने अपनी आंखों से देखा था कि चंद ही दिनों के बाद उसके बाप का इंतकाल हो गया था। उसका बाप एक ज़हनी मरीज बन गया था जिसने छत से छलांग लगा दी थी। उस दिन ही उसने खुद से ऐद किया था कि वो उस औरत को जरूर सजा देगा, मगर इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी वो उसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया था। मुझ पर भी ये राज आश्कार हो गया था कि उस दिन अपने बाप को कत्ल गुस्से में नहीं बल्कि उस जादू के जोर में आकर किया था जो मेरी माँ ने मुझ पर कर दिया था। और अब अम्मा की ये ख्वाहिश थी कि मैं खाला के साथ उनकी पीढ़ी पर बैठूं और यही काम सीखूं। अगर इंस्पेक्टर मुझे अम्मा के माजी के करतूतों के बारे में न बताता तो शायद मैं खाला की बातों में आ भी जाती। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। मुझे उस वक्त शदीद शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। इंस्पेक्टर मुझे देखकर कहने लगा कि जब मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा था तभी मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, और बाद में जब मुझे पता चला कि तुम उस औरत की बेटी हो तो मुझे बहुत दुख हुआ था, मगर मैंने खुद से ये भी ऐद किया था कि मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं फंसने दूंगा बल्कि बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तुम्हारी अम्मा ने माजी में जो कुछ भी किया बल्कि अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया उसकी सजा तो उन्हें मिल ही जाएगी। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी अपनी जिंदगी बर्बाद करो। मैंने उसके चेहरे की तरफ उम्मीद से देखा और उससे पूछा, क्या तुम मेरी जिंदगी संवारने में मेरी मदद करोगे? उसने तेजी से हाँ में सर हिला दिया और कहने लगा, हाँ मैं हर मोड़ पर तुम्हारी मदद करूंगा। अगले ही दिन उसने मुझसे निकाह कर लिया था। दूसरी तरफ खाला ने मुझे 2-3 बार अपने काबू में करने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें दो टोक और साफ अल्फाज में बता दिया कि मैं अब उनकी कोई भी बात नहीं मान सकती। मुझे उनसे बहुत खौफ महसूस होता था, इसलिए थोड़े ही अरसे के बाद मेरे शोहर ने दूसरे शहर अपना ट्रांसफर करवा दिया और मैं उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए वहां पर चली गई। अब अभी जब मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ ने इतनी स्याह जिंदगी गुजारी है तो मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांप जाता है और मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस सबसे महफूज रही।